خبر سے آگاہ کریں۔ بدین کے علاقے کھوروا شہر میں زمینی تکرار پر 2 برادریوں میں تصادم، راہمہ اور خاسکیلی برادری کے 5 افراد قتل، 6 شدید زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں عبد المجید، محمد صدیق، انور، مدد علی اور احمد خاسکیلی شامل ہیں۔ لاش اور زخمیوں کو تعلقہ اسپتال گولا ریچنی منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ 5 نیوز بدین میر شکیل سے۔ جی شکیل، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ آج صبح سویرے کھوروا کے شہر میں زمینی تکرار پر 2 برادریوں میں تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 5 افراد جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 6 افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں، جنہوں کو گولاچی کی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ جبکہ ایس ایس پی بدین قمر رضا جسکانی بھی ابھی جو ہے وہ گولاچی میں ہاسپٹل پر پہنچ گئے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ بھی جمع ہو گئے ہیں۔ جی میر شکیل ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ میرپور خاص شاہ نواز کمبھر ماویہ عدالت قتل کیس میں تشدد کو نظر انداز کرنے کے الزام میں گرفتار میڈیکل آفیسر ڈاکٹر منتظر مہدی کی انسداد دہشت گردی عدالت میرپور خاص سے 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی گئی۔ میرپور خاص سول اسپتال میڈیکل آفیسر منتظر مہدی کو 2 لاکھ روپے عوض معزز عدالت نے ضمانت منظور کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر منتظر لغاری کے والد ڈاکٹر موسیٰ لغاری کی جانب سے ان کے وکیل قانوندان حاجی قلندر بخش لغاری اور ان کے ساتھی وکیل عطا محمد لغاری کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ اس حوالے سے سینئر قانوندان حاجی قلندر بخش لغاری نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے موکل کو بلا وجہ کیس میں ڈالا گیا تھا۔ ہم نے معزز جج صاحبان سے استدعا کی تھی کہ میرے موکل پر بلا جواز کیس درج کیا گیا ہے۔ چنیوٹ فیصل آباد روڈ پر واقع بھٹو کالونی میں آتش بازی کا سامان بنانے والے گھر میں دھماکہ ہو گیا۔ واقعے میں 1 شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد جھلس کر شدید زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ چنیوٹ فیصل آباد روڈ پر واقع بھٹو کالونی میں آتش بازی کا سامان بنانے والے گھر میں اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ واقعے میں آتش بازی کا سامان بنانے والے کاریگر جھلس کر زخمی ہو گئے۔ شیر علی دھماکے کی زد میں آ کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بارودی دھماکے سے زخمی ہونے والے آصف اور شہزاد کو تشویشناک حالت میں ریسکیو اہلکاروں نے DHQ اسپتال منتقل کر دیا ہے، جہاں جھلس کر زخمی ہونے والوں کو طبی امداد کے بعد فیصل آباد الائڈ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ماہ سیام میں ماڈل بازاروں میں سستی اشیاء خوردنوش کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے آفتاب نواز کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق رمضان المبارک کے دوران جنگ روڈ پر واقع ماڈل بازار میں شہریوں کو سستے نرخوں پر اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بازار میں قائم سہولت سٹالز پر کم قیمت میں آٹے، چینی، گھی، پھل، سبزیوں اور گوشت کے علاوہ روزمرہ ضروریات زندگی کی وسیع رینج دستیاب ہے۔ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہم سب کے لیے اہل محلہ نزدیک جتنے بھی محلے ہیں ان سب کو یہ سہولت مہیا کی ہے کہ یہاں پہ سبزیاں اور بھی ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء باہر سے جو ہے یہاں پہ برائت مل رہی ہیں۔ بازار میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ صاف ستھرے، دوستانہ اور محفوظ ماحول میں رعایتی نرخوں پر معیاری اشیاء خورد و نوش اور گھریلو مصنوعات کی فراہمی حکومت کا ایک احسن اقدام ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جو اقدام ہے یہ بہت اچھا ہے اور یہاں پہ صفائی ہے اور باہر سے نسبت کافی سہولت ہے یہاں پہ۔ ماڈل بازار میں داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ، CCTV کیمروں، سیکورٹی عملے کے علاوہ شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے اور خریداری کے دوران کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بروقت امداد کی فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ، ریسکیو 1122، محکمہ صحت اور FWMC کا عملہ شہریوں کی خدمت کے لیے موجود رہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سہولت بازار میں شہریوں کو اشیاء خورد و نوش رعایتی نرخوں پر دستیاب ہے۔ شہریوں نے رمضان المبارک میں ریلیف فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ آفتاب نواز، 5 نیوز، فیصل آباد۔
कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद ने ननकाना साहब की तीनों तहसीलों का दौरा किया। तहसील सांगला हिल, तहसील शाहकोट, तहसील ननकाना और शहर के दौरे पर आला अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने रमज़ान बचत बाज़ार, इम्तिहानी मराकज़ सेंटर का दौरा करते हुए पे ऑर्डर्स तकसीम के अमल का जायज़ा भी लिया। उन्होंने रमज़ान बाज़ारों में फल, सब्जी, चिकन और दीगर स्टॉल्स को चेक किया। मॉडल बाज़ार में तमाम अशिया की क्वालिटी को चेक किया, नरकनामी चेक किया और शहरियों से भी दरियाफ्त किया। रमज़ान बाज़ारों का बाकायदगी से विज़िट जारी रहेगा। दौरों का मकसद 100% सहूलियात को यकीनी बनाना है। फैसलाबाद की मेन शाहरा चनाब क्लब चौक में PHA की जानिब से पाक फौज के जवानों के साथ लहराता हुआ पाकिस्तान का कौमी परचम लगाकर खूबसूरत मॉडल तैयार किया गया है, जो कि शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। इस हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में PHA की जानिब से मेन शाहरा और चौकों के ऊपर मुख्तलिफ मॉडल्स लगाने का काम जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चनाब क्लब चौक के बाहर, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का मॉडल बनाया गया और साथ में पाकिस्तान का कौमी परचम भी नस्ब किया गया है, जो कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करके जानते हैं। जी बताइएगा, PHA मुख्तलिफ मॉडल्स लगा रही है फैसलाबाद में, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छे इकदाम है इनका। जैसे कि अभी चनाब क्लब में PHA की तरफ से मेन हर जो शाहरा के ऊपर इस तरह के मॉडल बनाए जा रहे हैं। जैसे आर्मी का, इसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। ये बहुत अच्छी इलामत है पाकिस्तान के लिए, आने जाने वालों के लिए बहुत अच्छी इलामत है। अब हम गुजारिश करते हैं कि जो हर मेन शाहरा और चौकों में इस तरह के मॉडल और नस्ब किए जाए। हाँ जी बिल्कुल, शहरी जो है वो PHA के इस इकदाम से इंतहाई खुश दिखाई देते हैं और शहरियों का यही कहना है कि जो शाहराएँ अभी खाली पड़ी हैं उनके ऊपर भी ये मॉडल्स बनाए जाएँ ताकि शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सके। जी वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक कानपुर में भी ख्वाजा सरा बरादरी के लिए हुनरमंद प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। ख्वाजा सरा को मुख्तलिफ कोर्स सिखाए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कानपुर से सलीम मुगल। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानपुर में भी वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक ख्वाजा सराओं की बका के लिए इन्हें हुनरमंद बनाया जा रहा है। PhD के तहत इदारा TMS में ख्वाजा सराओं की मुख्तलिफ कोर्सेज, जिनमें कंप्यूटर कोर्स, फैशन डिज़ाइनिंग, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशन वगैरह के कोर्स कराए जा रहे हैं। हमारी कम्युनिटी को तालीम दी जा रही है। यहाँ पे तकरीबन हमारे 40-50 फ़र्द हैं जिनको कंप्यूटर कोर्स, उसके बाद ब्यूटिशन और उसके बाद सिलाई का कोर्स सिखाया जाएगा। और हमारी कोशिश है कि हमारा तबका जितना भी है ये अच्छी अच्छी तालीम हासिल करे, अपनी जॉब करे, अपनी यानी कि अपनी इज़्ज़त को आगे बढ़ाएं और हम भी आम मर्द और औरत की तरह माशरे में एक अच्छा नाम और रोशन करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं माशाल्लाह, और सिलाई कढ़ाई का काम है, शिफ्ट का काम है माशाल्लाह, पार्लर का काम है। बहुत अच्छा हमारा तावन हो रहा है और हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा हमें रोज़गार मिले, अच्छे में जॉब मिले, हम बाइज़्ज़त रोज़ी कमाएं और बाइज़्ज़त रोज़गार करें। DSP खानपुर चौधरी अजहर इकबाल ने ट्रांसजेंडर हुनरमंद सेंटर का विजिट किया। ख्वाजा सराओं की हौसला अफजाई करते हुए IG पंजाब और DPO रहीमा खान के अहकामात पर 50 राशन बैग तकसीम किए। इस दौरान मंचले ख्वाजा सराओं ने DSP अजहर इकबाल से ईदी की फरमाइश भी कर दी, जिस पर उन्होंने अपनी जेब से बखुशी 50,000 रुपये बतौर ईदी तकसीम कर दी। DSP अजहर इकबाल ने इनके हुनर सीखने के लगन को और काविश को खूब सराहा। इतनी खुशी हुई है कि आप ये माशरे का एक पॉजिटिव फर्द बनने के लिए और अपना पूरा रोल अदा करने के लिए पाकिस्तान की तरक्की में ये इंतहाई मेहनत कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब से बात हुई है कि ये इतनी मेहनत से काम सीख रहे हैं कि हमारी ये इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए और माशरे के फाल फर्द बनने के लिए ये भरपूर कोशिश रहेंगे और ये इंतहाई अपना अच्छा रोल अदा करेंगे। आज के इस दौर में जहाँ पे ऑनलाइन स्किल किसी भी माशरे तरक्की के लिए बेहतरीन साबित हो रहे हैं, वहीं पर ख्वाजा सरा भी ऑनलाइन अर्निंग स्किल सीखकर बेहतर शहरी होने के साथ जो है आला मकाम हासिल करने के साथ जो है बेहतर रोजगार भी कमा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। जिला उकाड़ा में हजारों एकड़ रकबे पर खीरे की फसल काश्त की जा रही है। ये फसल मुनाफा बख्श है। खीरे में प्रोटीन और कैल्शियम मौजूद है। उकाड़ा का खीरा न सिर्फ पंजाब बल्कि दीगर सूबों तक भी जाता है। देखते हैं गुलाम मुस्तफा चौधरी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में खीरे की बहुत सी अक़साम पाई जाती हैं, मगर जिला उकाड़ा में पैदा होने वाला खीरा अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। खीरे की सबसे ज्यादा पैदावार उकाड़ा में होती है। खीरा वो सब्जी है जिसमें सबसे कम कैलोरीज पाई जाती हैं। खीरा में 80% पानी होता है, जो तजाबियत, आंखों की पलाहट और जिस्म की गर्मी को खत्म करता है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक खीरे में प्रोटीन और कैल्शियम का एक खास तनासब मौजूद होता है, जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद है, बल्कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है
और वजन में कमी लाता है। मैं जी ज़िला उकाड़ा के गांव कोट सुल्तानपुर का ज़िम्मेदार हूं। हमारे एरिए में इलाके में खीरे की बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है और इसमें मुख्तलिफ किस्म की वैरायटियाँ, ज़्यादातर मैक्सवेल और याला काश्त किया जाता है और ये माशाल्लाह ये 6-7 महीने की फसल है। ये गर्मियों सर्दियों दोनों मौसमों में काश्त किया जाता है। खीरे की फसल सारा साल चलती है और मुनाफा बख्श है। खीरे का इस्तेमाल ना सिर्फ हर घर की जरूरत होती है बल्कि इसे शादी ब्याह की तकरीबात, होटल और दीगर तकरीबात में सलाद के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। काश्त किए जाने वाले खीरे की डिमांड ना सिर्फ पंजाब बल्कि सूबा सरहद, KPK और बलूचिस्तान तक है। उकाड़ा के फार्मर खीरे की पैदावार से करोड़ों रुपए सालाना ज़र मुबादला कमाते हैं। गुलाम मुस्तफा चौधरी, 5 न्यूज़, उकाड़ा। चिन्योट में चीनी की कीमत बुलंद सतह पर जा पहुंची। चीनी 180 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त होने लगी। आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मजीद जान लेते हैं किराना स्टोर पर मौजूद अपने नुमाइंदे मियां मुनव्वर हुसैन से। जी मुनव्वर, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में भी बढ़ती हुई महंगाई ने आम आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों से आवाम परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीनी स्टॉल पर। यहाँ पर मेरे साथ खरीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, चीनी खरीदने आए हैं, क्या रेट मिल रहा है? चीनी 175 से 80 रुपए में मिल रही है। यही चीनी जो 130 से 40 रुपए में मिलती थी, तकरीबन 30 से 35 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। तो गरीब बेचारा 2 वक्त की रोटी खाए या बच्चों का पेट पाले, क्या करे, हम क्या कर सकते हैं। तो खुदारा हुकूमत वक्त से यही गुजारिश है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए और शुगर माफिया को लगाम दी जाए। हाँ जी, जैसा कि आपने खरीदार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त फौरी तौर पर नोटिस लेकर बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें ताकि शहरी आसानी से जिंदगी गुजार सकें। जी, पाकिस्तानी खवातीन में टैलेंट की कोई कमी नहीं। छोटी सी उम्र और बड़ी बड़ी चोटियां, और वो भी बर्फ से ढकी हुई। नुक्ता जमात को छूता दर्जा हरारत। जी हाँ, उनिका ने छोटी उम्र में ये चोटियां सर करके कम उम्र कोह पैमा होने का एहसास हासिल कर लिया। देखते हैं मैं फारूक एहसान की रिपोर्ट। अनिका अजहर हफ्जाबाद से ताल्लुक रखने वाली कम उम्र कोहपैमा है और पाकिस्तान में कोहपैमाई के मैदान में नुमाया मुकाम रखती हैं। अनिका ने सर्दियों में कोहपैमाई करके लड़कियों में सबसे कम उम्र कोहपैमाई का एजाज अपने नाम किया। अनिका ने कम उम्री में ही बुलंद चोटियों को सर करने के अज़म का इजहार किया है। 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर करना चाहती हूँ और पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट कोहपैमा बनना चाहती हूँ। इस्लामाबाद के पाइन क्लब ने अनिका को मेडल से नवाजा। पाकिस्तान के नौजवान कोहपैमा शहरोज काशिफ ने अनिका को आइस एक्स गिफ्ट किया। बच्चियों की तरफ से इस तरह की कोशिश नहीं की गई। मेरी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, अल्लाह पाक ने कामयाब किया है। बिलाशुबा अनिका एक बाहिम्मत बेटी है। अनिका की कामयाबियां और कारकर्दगी पाकिस्तान में खवातीन की हिम्मत और अज़म की अक्कासी करती हैं, जो मुश्किल हालात में भी अपने मकासद के हसूल के लिए कोशा हैं। महर फारूक, चैनल 5, हैदराबाद। पाकपतन शहर में माह सयाम में जहां अशर खुर्दनोश महंगे दामों फरोख्त होने पर आवाम परेशान दिखाई देती है, वहीं पर ब्रायलर गोश्त भी इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अयूब चावला से। जी अयूब, बताएगा। माह सयाम के दौरान जहां अशियाए खुर्दनोश महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, वहीं पर जो है ब्रायलर के गोश्त की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मैं इस वक्त पाकपतन के नगीना चौक में दुकानदार के साथ मौजूद हूँ। इनसे जानते हैं कि महंगाई की वजह क्या है और क्यों गोश्त महंगा बेचा जा रहा है। ब्रायलर महंगा होने की वजह सिर्फ और सिर्फ फार्मों से माल की जो सप्लाई है वो बहुत इंतहाई महंगे दामों आ रही है। इसमें ना तो ज़मीन इंतजामिया का मामला है, ना कोई गाड़ी वालों का, ना दुकानदारों का। जब से ब्रायलर महंगा हुआ है, हमारा कारोबार जहाँ मन बिकता था, आज हमारा 20 किलो गोश्त बहुत मुश्किल बिकता है। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि फौरी एक्शन लेते हुए अवाम को रिलीफ दें और इसकी एक ही वजह के फार्मों को कंट्रोल किया जाए, वहाँ से सस्ता माल सप्लाई करवाई जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। शुक्रिया। जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका कहना है कि हमें सप्लाई महंगी दी जाती है, जिसकी वजह से गोश्त महंगा बेचना हमारी मजबूरी है, हमारी दुकानदारी भी तबाह हो रही है। जी, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब भर की तरह कसूर में महकमा सेहत के रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़ सेहत को आउट सर्विस करने के फैसले के खिलाफ महकमा सेहत के सैकड़ों मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद तफसीलात लेंगे कसूर से सजाद अंसारी से। जी सजाद, बताएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर। यहाँ पर जो है महकमा हेल्थ के जो मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि BHU और RSC सेंटर को जो ऑफ सोर्स किया जा रहा है, जिससे जो हज़ारों जो मुलाजमीन हैं उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। एहतजाज में इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से, उनका क्या कहना है बताइएगा, क्या कहेंगे आप? ये इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने निजकारी का निज़ाम शुरू किया है BHUs RHCs और इदारों का, ये पहली बात तो है कि 73 आइन के ख़िलाफ़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये निजकारी कर रहे हैं तो बजाय इससे कि अवाम तक बेहतरीन सहूलियात पहुँचेंगी, ये जिनको निजकारी की जा रही है, जो ठेकेदार है वो अपने मुताबिक सिस्टम को चलाएगा, वो पैसे बचाने के चक्कर में होगा, वो डिलीवरी सही नहीं देगा। और ये जो 2 लाख की तकरीबन अवाम है, ये 2 लाख जो पैरामेडिक्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये तमाम कैडर्स हैं, ये बेरोज़गार हो जाएंगे। ये इंतहाई सख्त ज़ालिमाना जो सलूक किया जा रहा है, ये ज़ालिमाना निज़ाम है। मैं हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस निज़ाम को फ़ौरन से पहले बंद किया जाए, नहीं तो हमारा एहतजाज डिस्ट्रिक्ट लेवल से बढ़ के सूबाई लेवल तक भी जाएगा इंशाल्लाह। जी जैसे आपने बात सुनी, उन्होंने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये जो ऑफ सोर्स किया जा रहा है RSC BHC को, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए, वरना हमारा एहतजाज का जो दायरा कार है वो वसी होगा। जी पंडी खेब में वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावे धरे के धरे रह गए। जगह जगह गंदगी और कचरे ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। बदबू और ताफून के बाद इलाका मकीनों में बीमारियां फैलने का खदशा। मजीद बता रहे हैं पिंडी खेब से आसिफ साबरी इस रिपोर्ट में। पिंडी खेब में वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम ख्वाब बनकर रह गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और गलाजत के ढेर ताहाल मौजूद, जिसके बायस राहगीरों और इलाका मकीनों को सख्त अजियत का सामना करना पड़ता है, जबकि बारिश के बायस तूफान और बदबू से गुजरना भी मुहाल हो जाता है। हम सुबह शाम यहाँ से गुजरते हैं और इतना गंद है, आज 15-20 दिन हो गए हैं। पहले इतना सुकून था जब इन्होंने ये गंद निकाला, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आया। हमें तो ये बता रहे हैं कि साफ सुथरा पंजाब है, ये कहाँ का साफ सुथरा पंजाब है? इधर तो कोई हमें सफाई नजर नहीं आ रही। बराए मेहरबानी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि हमारी सफाई कराएं। पहले भी कोई बेहतर था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खराब हो गया। सफाई का तो निज़ाम होना चाहिए। जो सफाई है वो ठीक है, इन्होंने साफ सुथरा पंजाब वालों ने सफाई की है, लेकिन ये सफाई करके उन्होंने बाहर फेंक दी है। इसको बाहर वाले को भी, इनको भी उठाना चाहिए, और अगर नहीं उठाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा? यही फिर दोबारा जो है नाले में आकर के या यहीं फैलेगा। लोगों को दिन में गुजरने की तकलीफ होती है, फिर बीमारियां फैलती हैं। मच्छर, अब गर्मी आने वाली है, मच्छर होंगे, डेंगू होगा, उसके हुकूमत का और ज़्यादा खर्चा होगा। तो इसलिए अगर सफाई होगी, पब्लिक को भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए, लेकिन ये है कि उसके साथ हुकूमत को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। यहाँ से रोज स्कूल जाते हैं, इतना कचरा होता है। बारिश जब होती है, अभी बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश होती है, इतना कीचड़ होता है, कपड़े गंदे होते हैं, डेंगू मच्छर फैलते हैं। ये साफ सुथरा पंजाब है, वैसे कहते रहते साफ सुथरा पंजाब बनाएंगे हम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सफाई के हवाले से दावे किए थे कि पंजाब साफ सुथरा होगा, मगर पिंडी गेब शहर में जगह जगह गंदगी ने यह साबित कर दिया कि साफ सुथरा प्रोग्राम पिंडी गेब शहर में फेल हो गया है। आसिफ साबरी, चैनल 5, पिंडी गेब। तादू में इंतजामिया की नहली के बाद रेलवे कॉलोनी, तौफीक कॉलोनी और दीगर इलाकों में गटर का पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया। माह रमजान के बाबरकत महीने में भी म्यूनसिपल इंतजामिया सफाई सुथराई कराने में नाकाम। तफसीलात से आगाह कर रही हैं हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श खुश्क। जी अल्लाह बख्श बताएगा। देखिए, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ दादू शहर के रेलवे कॉलोनी के इलाके में। मैं आपको बताऊँ कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है गटर नालों का गंदा पानी मलने की वजह से जो है गंदा पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया है। मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये रेलवे सड़क है जिसके गंदा पानी जमा होने से शहरी शदीद परेशानी है। रेलवे कॉलोनी है, शहबाज कॉलोनी, तौफीक कॉलोनी समेत जो दीगर शहर के 10 से ज़ायद इलाके हैं, उनमें गंदा पानी दाखिल होने से जो है इस माह रमज़ान में बरकत के महीने में शहरी जो शदीद परेशानी का सामना करने पर मजबूर है। शहरी हलकों का ये कहना है कि म्युनिसिपल इंतजामिया को माहाना करोड़ों रुपए की बजट जारी होने के बावजूद जो शहर जो है गंदगी की लपेट में है। गंदा पानी जो उनके घरों में दाखिल होना मामूल बन गया है। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर दादू को भी गुज़श्ता रात से शिकायत की गई है कि यहाँ पर गंदा पानी जो घरों में दाखिल हो गया है, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया है। मैं आपको बताऊं कि ये दादू शहर का UC1 और UC4 का इलाका माना जाता है, जिसके काउंसलर भी यहाँ से गायब है, वो भी नज़र नहीं आ रहे। शहरी हलकों ने शदीद एहतजाज किया है कि आया ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है मुतल्लिका हिकाम से रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में डायरेक्शन दी गई
कि जो है गंदा पानी जो है जो वो सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर किए जाए, लेकिन यहाँ पर जो है इंतज़ामिया की नाम कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। दादू के शहरी हलकों ने यही मुतालबा किया है कि जो गटर नालों का गंदा पानी उबला पड़ा है उसकी जो सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। जी। कमीर शरीफ रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में भी चिकन की कीमत में इस्तेहकाम नहीं लाया जा सका, जो इसी वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। गरीब तबके के लिए मटन बीफ खरीदना तो दूर की बात, चिकन गोश्त की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर है। मज़ीद अहवाल जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ मलिक अबरार कोकर की इस रिपोर्ट में। कमीर शरीफ माह सयाम में दिगर अशिया खुर्दोनोश की तरह आम तबका की खुराक मुर्गी के गोश्त में भी होशरबा इजाफा कर दिया गया। रमजान मुबारक से पहले चिकन की कीमत तकरीबन 580 रुपए फी किलो थी, जो कि पहले अशरे में बढ़ाकर 650 रुपए तक पहुंच गई, मगर उसकी कीमत में अभी तक इस्तेहकाम नहीं लाया जा सका। इसकी मांग बढ़ने से अब दूसरे अशरे में 700 रुपए फी किलो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से रोजादार अफ्तारी के वक्त मुर्गी के गोश्त से लुत्फ अंदोज होने से कासिर हैं और रूखी सूखी खाकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। सर मुर्गी का रेट रमज़ान तो पहले 500 सीगा, रमज़ान जिस टाइम शुरू होया रमज़ान उस टाइम तकरीबन 700 750 सेल कर रहे हैं। लिहाजा गौरमेंट ਨੂੰ अपील है कि यही सस्ता करन, जिस तरह रूटीन पहले सी उस तरह ही बनान, ताकि गरीब जड़ा बंदा है वो रमजान दे विच अपना अच्छे तरह अफ्तारी वगैरह करा सके। दूसरी जानब चिकन फरोश दुकानदार अपनी परेशानियों का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि मुर्गी की कीमत पीछे फार्मों से ही बहुत ज्यादा है, जिस वजह से हमारी दुकानदारी भी ना होने के बराबर है। खरीदार रेट सुनकर ही खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। माह रमजान तो पहले गालिबान कम से कम रेट मुर्गी का 550, ਜਦੋਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੜਿਆ 700 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮੁਰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। कस्टमर ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ 700 रुपया, कस्टमर खुद साढ़े गाल पैंदा। इस माह मुकद्दस में अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम करने की बजाय बढ़ा देना प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की चक्की में पिसे हुए शहरियों का इस नेक और बाबरकत महीने में भी कोई पुरसाने हाल नहीं। माह रमजान के मुकद्दस महीने में जो गोश्त की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसकी वजह से खरीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान है। खरीदार कहते हैं कि जो मुकामी जो इंतजामिया है वो रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो यहाँ पे जो सेल करवाने से जो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जबकि दुकानदार जो है वो कहते हैं कि हमें जो चिकन है, जो मुर्गी जो है वो हमें पीछे से जो है वो महंगी मिल रही है। लिहाजा हुकूमत वक्त को मुकामी इंतजामिया को पीछे जो बैठा हुआ माफियाज है उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। कैमरामैन टीम के साथ मलिक इब्रार खोखर, 5 न्यूज़, कमीर शरीफ। अरफाला में दर्जी की दुकानों पर कपड़ों की सिलाई का रश लग गया, जबकि दर्जियों ने भी कपड़ों की सिलाई के रेट में इजाफा कर दिया। मजीद इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ आमिर तूर से, जो कि इस वक्त लेडीज टेलर्स की दुकान में मौजूद हैं। जी आमिर बताएगा। जी हाँ, माह रमज़ान का दूसरा अशरा चल रहा है, तो जिस तरह बाज़ार में ख़रीदारी के लिए रश है, तो दूसरी जानब दर्जियों की दुकान पर जो है वो भी रश बढ़ चुका है। मैं इस वक्त एक दर्जी की दुकान पर मौजूद हूँ। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उन्होंने नई बुकिंग अभी चल रही है या बंद कर दी है, और दूसरी जानब रेट में कितना इजाफा किया। जी बताइएगा। जी सिलाई में भी इजाफा किया है, क्योंकि मटीरियल में इजाफा हुआ है, जैसा कि बुकरम, नलकी, चेपी वगैरह में इजाफा हुआ है, इसलिए हमने सिलाई में भी इजाफा कर दिया है। और पिछले साल से आज ज़्यादा रश है, इस साल ज़्यादा रश है, और बुकिंग हमने बंद कर दी है। जैसा कि आपने सुना है कि महंगाई होने की वजह से बुकरम, चेपी, बटन, नलकी वगैरह भी मज़ीद महंगे हो गए हैं। इसकी वजह से मजबूरन जो है हमें सिलाई में जो है वो भी इजाफा करना पड़ा है। जी माह रमज़ान की बरकतें समेटने का सिलसिला जारी है। पाकपतन में पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से नादार और मुस्तहिकीन को डेली बेसिस पर इफ्तारी फराहम की जा रही है, ताकि गरीब और नादार अफराद भी रमज़ान की बरकतें समेट सकें। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती के पोस्ट में देखिए। पाकपतन में माह सियाम के दौरान पाकिस्तान बैतुल माल और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम जिला भर में 900 से ज़्यादा नादार अफराद को अफ्तारी फराहम की जा रही है, ताकि रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेट सकें। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और पाकिस्तान बैतुल माल के बामी इश्तराक से तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम के तहत जिला पाकपतन में 900 से ज़्यादा अफराद को रोज़ाना अफ्तारी करवाई जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला पाकपतन में भी जारी और सारी है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मर्दों खवातीन के लिए अफ्तारी के एहतमाम को शहरियों ने खूब सराहा। बैतुल माल तरफों सानू मिलता है खाना, तो उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया सर अफ्तारी वास्ते खाना देंदे ने। बैतुल माल वाले ਅਸੀਂ शुक्रिया अदा करदे चाहते हैं, सानू अफ्तारी वास्ते रोजाना ही लंगर देंदे ने। पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर पार्सल की सूरत में शहरियों को अफ्तारी फराहम की जा रही है, ताकि अहले खाना के साथ अफ्तारी कर सकें। नादार और मुस्तहिक अफराद को रोजाना की बुनियाद पर अफ्तारी फराहम करना पाकिस्तान बैतुल माल का अहसन इकदाम है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़,
पाकपतन। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में माह मुकद्दस में गिरा फरोशी। मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में माह मुकद्दस में गिरा फरोशी और सब्जियां सरकारी रेट के बजाय मनमानी रेट्स पर फरोख्त की जाने लगी हैं। महंगाई की वजह से गरीब शहरी फल और सब्जियां लेने से महरूम हो गए हैं। अलीपुर के शहरियों का कहना है कि सरकारी लिस्ट के मुताबिक कोई भी चीज फरोख्त नहीं हो रही। आम दिनों में बिकने वाला सेब कहाँ 200 रुपए किलो से 400 रुपए किलो तजावुज कर गया है। इसी तरह माल्टा 250 से 300 रुपए किलो और स्ट्रॉबेरी 500 रुपए किलो से तजावुज कर गई है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सेवन में भी हर शहरी और सिविल सोसाइटी के लोग वफाकी हुकूमत की जानिब से दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अली खान लाखों से। जी अली, मजीद आगाह कीजिए। आज बिल्कुल आज सेवन शरीफ में सिविल सोसाइटी की जानिब से दरिया सिंध पर बनाए गए 6 गैर कानूनी कैनाल्स के खिलाफ सिविल सोसाइटी के हजारों जो लोग हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने कॉलेज रोड से धमाल चौक तक जो है वो रैली निकाली है। रैली में शुरा ने खिताब करते हुए कहा है कि वफाक जो है वो सिंध पर जो है 6 गैर कानूनी कैनाल बना रही है, जिसके बाद सिंध की लाखों एकड़ जो ज़मीन है वो गैर आबाद हो जाएगी, जिससे जो ज़रिए जो है वो मुआशी कत्ल है इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। सिविल सोसाइटी में रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि दरिया सिंध पर जो गैर कानूनी 6 कैनाल बनाने की तैयारी है वो बिलफौर वापस लिए और 7 करोड़ जो सिंधी लोग हैं उनकी बेचैनी खत्म की जाए। जी खानेवाल रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में ज़कीरानंदोज़ी और चार्जेस करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मजीद जानते हैं आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में। साहबा की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान की जानिब से रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में ज़ख़ीरा अंदोज़ी ओवरचार्जिंग करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी रमजान मुबारक में करने वालों के खिलाफ जुर्माने और FIR दी जाएगी। रहमान रहीम, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि जो आम आवाम है उन तक भरपूर रिलीफ दिया जा सके और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत में इस पर टॉलरेंस नहीं है। इसी सिलसिले में खानेवाल में जो एडिबल ऑयल है उस पर आज इंस्पेक्शन किया गया है, उनके गोडाउंस को चेक किया गया है, जो उनका स्टॉक डिक्लेयर वो करते हैं। इस पर हमारी टीम्स की सख्त से सख्त नज़र है और आज खुद EADA ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो टीम है उन्होंने डिफरेंट गोडाउंस को इंस्पेक्ट किया। उनका जो फिजिकल स्टॉक वहाँ पे पड़ा हुआ था उसको काउंट किया गया, उसको टैली किया गया है जो उन्होंने डिक्लेयर किया है। इस थ्रू आउट एक्टिविटी का मकसद यही है कि जो हमारी आम आवाम है किसी भी तरह रमज़ानुल मुबारक में मुतासिर ना हो और जो सप्लाई है वो मार्केट में स्टेबल रहे और जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड प्राइस है उसी पर ही आम आवाम को दस्तयाब हों। इंतजामिया की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ऐसे ही तेज़ी से जारी रहेंगी। ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कैमरा मैन राना इफ्तिखार के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, 5 न्यूज़ खानेवाल। सादिकाबाद की सड़कों पर दौड़ते गैर महफूज लोडर रिक्शे मंजिलों की निशान मिटाने लगे। माह आज़ादी में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए कंबोडिया रवानगी का मुंतज़िर नौजवान अब्दुल्ला भी ऐसे ही रिक्शे की जद में आकर आज हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। मज़ीद नौजवान की दर्द भरी कहानी जानते हैं तहसील रिपोर्टर शफीक अहमद की इस रिपोर्ट में। ये है रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए अपने माँ बाप का सहारा बनने की उम्मीद लिए कंबोडिया रवानगी का मुंतज़र अब्दुल्ला, जिसे गुज़िश्ता साल माह आज़ादी में एक खूनी फट्टा रिक्शे ने बेरहमी से कुचल कर हमेशा के लिए सहारों का मोहताज बना दिया। अपनी मजदूरी पर बूहा करना अब्दुल्ला आज भी अपने हौसलों को बुलंद रखे हुए हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मैं ऑनलाइन वर्क के सिलसिले में कंबोडिया के लिए जा रहा था, लेकिन वीज़ा आने से एक हफ़्ता पहले जो है मेरा फटे रिक्शे के साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसके नतीजे में मेरी राइट लेग एक्सपायर हो गई। तो मेरी तरह कई और नौजवान हैं यहाँ पे जिनकी टांगें, हाथ, ठीक है, कई तो जान से हाथ धो बैठते हैं। तो हुकूमत को चाहिए जिस तरह बड़े शहरों में फट्टे रिक्शे वगैरह बिल्कुल बैन है, यहाँ पे भी जल्द से जल्द बैन किए जाएं या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए
ठीक है, कोई इंतज़ाम किया जाए लाइट वगैरह का, ना इनकी लाइट होती है ना कुछ होता है, और अचानक से आके जब ये बजते हैं तो बंदे को पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है वो। बेटे को तरक्की की मनाजिल की जानब बढ़ता देखने वाले वालिदैन अब सिर्फ चलता देखने के तालब हैं और जवाब तलब के कब इन कातर रक्षों को लगाम डलेगी। जो रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने वाला था और बड़ी मुश्किल से वीज़े वगैरह का सारा इंतज़ाम हम लोगों ने किया, लेकिन जाने से तकरीबन एक हफ़्ता पहले फटे रिक्शे के साथ एक्सीडेंट में उसकी दाईं टांग कट गई, जिससे उम्र भर की मजदूरी हो गई और वो बाहर भी नहीं जा सका और वीज़ा भी उसका कैंसिल हो गया। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट फटा रिक्शा जो है इनके ख़िलाफ़ पाबंदी आयद करे। ये मौत की सवारियां हैं जो लोगों को मजबूर कर रही हैं। सादकाबाद की शाहराहों पर मौत बांटते ये रक्शे किसी अजाब से कम नहीं। हुकूमत को चाहिए कि गैर कानूनी गैर महफूज फटा रक्षों के खिलाफ कार्रवाई करके पाबंदी आयद करे, ताकि फिर किसी अब्दुल्ला और उसके माँ बाप के ख्वाबो जवानी ना कुचले जाएं। कैमरा टीम के साथ शफीक अहमद, चैनल 5 न्यूज़, सादकाबाद। जालसाजी करने वालों के नित नए हरबे नाकाम हो गए। फूड सेफ्टी टीम ने खानपुर में कैचअप यूनिट पर कार्रवाई करते हुए 2 मन नाकिस कैचअप को तल्फ कर दिया। फूड बिजनेस ऑपरेटर को 40,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। तस्लात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने खानपुर में कैचअप यूनिट पर कार्रवाई अमल में लाई गई। नाकाबिल इस्तेमाल कैचअप की पैकिंग की जा रही थी। बैग से एक्सपायरी डेट को टैंपर किया गया था। कैचअप ज़ाया करके मुल्क को भारी जुर्माना भी आयद कर दिया। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीज़ा है। सोनीपत सिटी में अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से कोई रमजान बाजार नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से शहरी बाजारों से रोजमर्रा जिंदगी की अशिया दाल, चावल, आटा, चीनी वगैरह महंगे दामों खाने पर मजबूर हैं। सोनीपत बहुत बड़ी अक्सरियत वाला शहर है। ज़राअत शुमारी में भी तालुका पहले नंबर पर आता है। इसके बावजूद शहर में यूटिलिटी स्टोर का ना होना आवाम के साथ नाइंसाफी है। गरीब आवाम आम तौर पर महंगे दामों पर अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि माह रमजान में बचत बाजार कायम किया जाए ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। पिंडीकेप के बहादुर सपूत मोहम्मद इकरामुल्लाह वतन पर कुर्बान हो गए। जनाजा पूरे फौजी एजाज के साथ इलाके खोड़ में अदा कर दिया गया। पिंडीकेप के नवाही इलाके खोड़ के गेवर बेटे ने एक और तारीख रकम कर दी। मोहम्मद इकरामुल्लाह दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान कर गए और शहादत के आला रुतबे पर फाइज हो गए। शहीद की नवाज़ जनाजा में आला अस्करी और सिविल हुक्काम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, दोस्त अहबाब और अहले खाना समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।